ایک خفیہ ملاقات کا ذکر ہوا اور خفیہ ملاقات ہوئی۔ پہلی خبر آئی کہ علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ان کے ذمہ بہت زیادہ انہوں نے اتنی ٹوپیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں کہ وہ ٹوپی ٹوپی ہو گئے ہیں، اور اتنے ٹوپی ڈرامے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے اس وقت کون سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور میرا کیا رول ہے۔ اتنی ٹوپیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جناب فیلڈ مارشل ان کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے۔ ایران بھیجنا ہو، امریکہ بھیجنا ہو، چائنا بھیجنا ہو، اور کہیں بھی برطانیہ بھیجنا ہو، کہیں بھی بھیجنا ہو، تو وہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجنا ہو، پیپلز پارٹی کے پاس بھیجنا ہو، پی ٹی آئی کے پاس بھیجنا ہو، وہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ ہاں، البتہ نون لیگ کے پاس محسن نقوی صاحب کو نہیں بھیجا جاتا، نون لیگ کے پاس کسی اور کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ خطرہ سمجھتی ہے محسن نقوی کو اپنے لیے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ۔ ان کی انبن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو رقیب بالکل پسند نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سیاسی رقیب کی بات کر رہا ہوں، تو سیاسی رقیب ان کو بالکل پسند نہیں ہے، لہٰذا یہی ہوا ہے۔ اور عمران خان بھی کیونکہ سب سے بڑے سیاسی رقیب بنے ان کے لیے، اور اس لیے وہ ان کو بھی پسند نہیں کرتی۔ تو بہرحال محسن نقوی صاحب سے جی ملاقات ایک ہوئی، اور اس ملاقات کو جب رپورٹ کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ایک فیملی ممبر بھی موجود تھے اس ملاقات میں، اور یہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی۔ تو کچھ خاموشی رہی، اور اس کے بعد کل جناب علیمہ خان صاحبہ نے کل سب سے پہلے پتھر پھینکا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی محسن نقوی سے ملے، تو ان عمران خان صاحب کی فیملی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کی فیملی کا ممبر کوئی اس میں موجود تھا۔ یہ محسن نقوی صاحب نے کل تردید کر دی، بڑے سوری، علیمہ خان صاحبہ نے اس کی تردید کر دی کہ جو بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے، تو ان سے ہمارا کوئی نہ ہمیں علم ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی فیملی ممبر موجود تھا۔ اس کے بعد پھر سہیل آفریدی صاحب کو آنا پڑا، اور سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میری محسن نقوی سے ملاقات بنوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی، اور اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی، جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اب یہ باتیں، دو باتیں ہو گئی ہیں جی۔ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ملاقات ہوئی، اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیاسی نوعیت کی نہیں تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات محسن نقوی سے ہو اور بیرسٹر گوہر ہوں، اور اس میں کوئی سیاسی بات نہ ہوئی ہو، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ملاقات ہوئی ہی سیاسی ہے، اور اس میں یقیناً 100% اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہوئی ہوگی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہوئی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ بیرسٹر گوہر کو میں جانتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کے اچھے ایک ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے، اور وہ ایک برج ہے، اور وہ سافٹ سپوکن بھی ہیں، اور وہ یہ کام ان کے ذریعے جو اگر کوئی بات ہے تو ہوتی رہتی ہے، اور پیغام اگر پہنچنا ہے تو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے بیرسٹر گوہر کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور محسن سہیل آفریدی صاحب بھی آن بورڈ ہوئے، لیکن یہ ایسے موقع پہ ہوا جی کہ اس طرح یہ ہوئی ہے 14 مئی کو، یعنی آج ہے 25، اور تقریباً 9 دن پہلے، 9 دن پہلے، بالکل 11 دن پہلے، سوری، 14 اور 11 25، جی ہاں 11 دن پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ بھی پہنچے ہیں، اور اڈیالہ انہوں نے بھرپور قسم کا وہاں پہ شرکت کی ہے، سہیل آفریدی پوری کیبنٹ کے ساتھ، اور وہاں پہ ہلہ گلہ اچھا رہا اڈیالہ جیل میں ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی ڈیمانڈ کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ آپ سب کو آنا چاہیے۔ تو یہ اس ملاقات کے بعد پھر اگلے منگل کے روز یہ پہنچے ہیں، اور کل پھر منگل ہے، اور کل پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ ملاقات اس دوران ہوئی۔ اب اس ملاقات کے بارے میں جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ our family had no knowledge of this meeting and neither was any family member present۔ تو یہاں پہ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر سارا دن اکٹھا گزارا
अडयाला जेल के बाहर सोहेल अफरीदी साहब ने, पूरी काबीना ने। तो पूरा दिन जब उधर गुज़ारा, तो यकीनन पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि पिछले मंगल के दिन जो है वो तारीख़ मंगल के दिन तारीख़ क्या थी जी, ये मैं आपको अभी बता देते हैं सर देख के, क्योंकि ये है जी, आज हम बात कर रहे हैं तो 25 है, और पिछले मंगल को 19 तारीख़ थी जी। जी हाँ, 19, और 19 तारीख़ थी, और ये मुलाकात होती है 14 मई को, जुमेरात के दिन। 14 मई जुमेरात के दिन मुलाकात होती है, और उसके ठीक 5 दिन के बाद जो है वो मंगल का दिन आता है। अडयाला जेल में सोहेल अफरीदी साहब पूरी काबीना के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं, सारा दिन गुज़ारते हैं। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और वहाँ पे भी अलीमा खान साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सॉलिडेरिटी शो की जाती है, इज़हार यकजहती किया जाता है, और ये खबर जब फिर आउट होती है, लीक होती है, तो फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा इसकी तरदीद करती हैं, और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उसकी तस्दीक कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ये मुलाकात सियासी नहीं थी। अगर ये सियासी नहीं भी थी, अगर अमन-ओ-अमान के बारे में भी थी, फिर भी अलीमा खान साहिबा के को बता देना चाहिए था, और अगर बता देते तो ये कन्फ्यूजन ना होती। तो बहरहाल ये एक चल रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है? मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें अलीमा खान साहिबा को, क्योंकि अलीमा खान साहिबा हार्डलाइनर हैं। अगली बात मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी रीज़न क्या हो सकती है। इसकी रीज़न है वो हार्डलाइनर हैं, और सख्त मौक़िफ़ रखती हैं, और इमरान खान की बात को वो मनोअन बयान करती रही हैं, और बाहर आकर, और मुलाकातों पर भी अब पाबंदी इसीलिए है। अलीमा खान साहिबा पे भी मुकदमे चल रहे हैं, और वो भी जेल जा चुकी हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है, वो दोबारा गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, सज़ा सुनने के लिए तैयार हैं, यानी किसी किस्म का खौफ़-शौफ़ उनको कोई नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब मैं आपको इसका अगली बात बता दूँ कि ये मुलाकात जो हुई, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात है, ये राब्ते जो हो रहे हैं, इस पे मामला तय करने की कोशिश की जा रही है, और मोहसिन नकवी साहब अगर चल के गए हैं बन्नू, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर सोहेल अफरीदी साहब ने इसको खुफ़िया रखा, बैरिस्टर गौहर ने खुफ़िया रखा, तो मोहसिन नकवी साहब ने भी खुफ़िया रखा, और मोहसिन नकवी साहब ने भी वो एरिया, ये मुलाकात ये वो बन्नू जो है वो दूर-दराज़ बैरिस्टर गौहर के घर को सेलेक्ट किया, और बैरिस्टर गौहर के घर पे ये मुलाकात हुई। अब ये मोहसिन नकवी की मुलाकात नहीं थी, अगली बात मैं आपको बता दूँ। ये मुलाकात थी फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खुसूसी एलची की, और ये जनरल आसिम मुनीर साहब का ही पैगाम वो लेकर गए हैं, मोहसिन नकवी साहब, और फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम लेके गए, और जो कुछ उनके साथ गुफ्तगू हुई, वो वापस फ़ील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर तक, जनरल आसिम मुनीर शाह साहब तक पहुँच गई। तो ये बराह रास्त आप यूँ कह लें डायलॉग हो रहा है। उसमें अब इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि हम इस पे ऑन बोर्ड नहीं हैं। अब बाकी जो है मामलात कि कौन ऑन बोर्ड है, इसके अलावा कौन-कौन है, ये एक मुहिम्मा है, और उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल हैं शेख वक्कास, उन्होंने भी बता दिया कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। और शेख वक्कास चूँकि खुद भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तरीन तसव्वुर किए जाते हैं, बल्कि इंतहाई करीब तसव्वुर किए जाते हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा में मुक़ीम हैं, लेकिन उनका आना-जाना पंजाब में आना-जाना लगा रहता है, और कोई इश्यू नहीं है उनको उनकी मूवमेंट में। तो वो तो उसमें ये आपको बता दूँ कि उनका बहुत ही करीब, इंतहाई करीब हैं, और बल्कि क़यामत-ओ आम भी बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात इकट्ठा ही होता है। तो शेख वक़ास अकरम साहब का ये है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। तो ये खबर जो है, ये यकीनन ये खबर उम, नून लीग के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी सूरत में। नून लीग के लिए अच्छी नहीं है। अगर पीटीआई के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इस नौइयत की बातचीत चल रही है, और दोनों पार्टियाँ इसको मख़फ़ी रखे हुए हैं, चूँकि ये खबर लीक हो गई, आउट हो गई, और जब आउट हुई तो
सबसे पहले अलीमा खान साहिबा को अपनी पोज़ीशन क्लियर करना पड़ी। फिर सोहेल अफ़रीदी साहब ने उसकी तकरीबन उसकी तस्दीक कर दी। सिर्फ़ ये बताया कि अलीमा खान साहिबा नहीं थीं। ये उन्होंने बता दिया और अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इसका बता दूँगा मैं इंशाअल्लाह और ये भी बता दूँगा कि डिमांड्स क्या की जा रही हैं और जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। जो फ़ील्ड मार्शल क्या चाहते हैं ये मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी बात बता दूँगा। ब ए टू ज़ी उसमें कोई शक नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी कि अब सदर ट्रंप ने एक बार फिर जी यू टर्न ले लिया है, आखिरी खबर और उसका अभी वो खुशियों के शादियाने बज रहे थे कि ईरान के दौरे पे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अभी वो मुज़ा एमओयू अभी नहीं पहुँचा, एमओयू भी अभी पीछे है। एमओयू के लिए भी 60 दिन रखे गए हैं, 2 महीनों की तजवीज़ है कि 2 महीने इसके लिए होंगे एमओयू के लिए और उसमें अभी बैठेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो है कल सदर ट्रंप ने कही और क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी इख्तलाफात चल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ और इसको नेतन्याहू बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इज़राइली एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं इसको सपोर्ट कर रही। वो तो ईरान का हर सूरत में खात्मा चाहती है और उनकी फ़ौजी ताकत खात्मा चाहती है, रेजीम चेंज चाहती है। जैसे रेजीम चेंज पाकिस्तान में की गई थी, वैसे ही रेजीम चेंज वो तेहरान में चाहते हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो गड़बड़ तो वहाँ पे भी मौजूद है और वो भी इतने कोई खुश नहीं है इस सारे पीस प्रोसेस में। तो ट्रंप ने ये कहा है मुज़ाकरातकारों को कि जल्दबाज़ी ना करें। ये एक अहम सवाल है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात को अपने जो हैं जी मुज़ाकरातकार जो कर रहे हैं बातचीत, उन्होंने कहा कि किसी भी मुआहदे में जल्दबाज़ी ना करने की हिदायत सदर अमेरिका ने जारी कर दी हैं और अपने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी टीम को किसी मुआहदे में जल्दी ना करने का कहा है। मज़ीद कहा कि वक्त हमारे हक़ में है। ये भी कहा कि ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी किसी भी हतमी मुआहदे तक बरकरार रहेगी। ये कल उन्होंने कह दिया। इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी कि बातचीत जो है वो अभी तक बस हूँ-हाँ ही है, इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टेक्स बड़े हाई हैं जी। जो अमेरिका के डिमांड्स हैं, अमेरिका के जो मफादात हैं, वो ईरान अगर उन मफादात को, उन मुतालिबात को पूरे तरीके से मान लिया जाए, तो ईरान की मौत है और हर एतबार से और इसलिए ये मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि नेतन्याहू कहते हैं कि किसी भी हतमी माहदे में जौहरी ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए और जब ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारे का सारा यूरेनियम उठाकर अमेरिका के हवाले किया जाए और उसके बाद फिर ऐसी मज़बूत गारंटीज़ दी जाएँ कि दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं की जाएगी। तमाम जितने भी जौहरी साइट्स हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। तो ये अगेन एक मामला है। फिर ईरान के सूबे हर्मज़गान में इज़राइली ड्रोन भी मार गिराया है ईरान ने। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अभी भी काम जारी है। जंग बंदी के बावजूद जो है वो इज़राइली जासूस तैयारे जो हैं, वो निगरानी कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और साथ-साथ कुछ और भी चल रहा है। ये इज़राइली साख्ता ड्रोन था जो कि मार गिराया है और ईरानी बहरिया के ताउन से ये मलबा भी तलाश कर लिया गया है।